pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Super Duper MCQ 1. It is the first MCQ. CCA Rules 1965. Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1965. And in this part, I will discuss Rule 18 and 19 properly. And also in this part, I will discuss 14 MCQ questions with explanation. So my friends, please like my channel, share my channel and subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So definitely this part would be interesting one. So just you go through the full video and listen the full video. You can get very effective informations and also you can get latest format questions. So I do not want to waste more time. It is my first super duper MCQ related to the CCA rules 1965. You see, question number 1. It is given when two or more government servants are concerned in any case, the president or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a dash. 4 options given: joint proceeding, common proceeding, either A or B, neither A nor B. You know that when two or more than two government servants they fight among each other and accuse to each other, then in this case basically common proceeding is initiated. So here basically disciplinary authority, the president or any other authority competent to impose the penalty of dismissal, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास पावर है कि वो डिसमिसल का ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आप जानते हो जो रूल 14 है सीसीए रूल्स 1965 वो बेसिकली मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होता है। तो जो डिसमिसल रिमूवल होता है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है, ये सब मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑनरेबल प्रेसिडेंट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु हैज पावर टू इम्पोज द पेनल्टी लाइक डिसमिसल। तो ये केस में एक्चुअली कॉमन प्रोसीडिंग होता है, जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगा। ये बेसिकली आप देख लीजिए रूल 18 CCA rules 1965 clearly mention that when two or more government servants they fight among each other and accuse to each other, in this case common proceeding is initiated, right? And बेसिकली द सेम क्वेश्चन था, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे रूल 18 को। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज बिट बी। चलो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कॉमन प्रोसीडिंग्स। इट इज रूल 18, जस्ट टू रिमेंबर रूल 18 ऑफ सीसीए रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल को याद रखना है। इट इज क्लियरली गिवन व्हेन टू और मोर गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर कंसर्न्ड इन एनी केस, राइट? The president or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding, right? तो यहाँ पर जो competent authorities है बेसिकली आपको 2-3 चीज याद रखना है। ये जो common basically common proceedings related to the rule 18, when 2 or more government employees they fight among each other and accused each other, in this case honorable president or basically competent authority, those are having power to impose the penalty like dismissal, okay? तो यहाँ पर एक्चुअली वो डायरेक्शन देते हैं कि कॉमन प्रोसीडिंग होगा। कॉमन प्रोसीडिंग में क्या होता है, साइमल्टेनियसली बेसिकली प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन
and according to the criminal code, the proceedings should be initiated separately, not jointly, right? The proceedings should be initiated separately because cross cases are there, so same evidence, different appraisals are there. So 2 or 3 things just remember. Common proceeding simultaneously, it means proceeding initiated separately for the accusing employees, and simultaneously proceedings should be initiated, and quickly it must be initiated, so that any type of conflict finding should not be there. Clear? So according to the criminal code, joint proceedings should be avoided in this case. So separately, suppose for example 4 employees, actually they fight among each other. Common proceeding means for 4 employees separately proceeding initiated but simultaneously. Okay, एक ही साथ proceeding individually होगा, right? Same as evidence, different appraisals, cross cases, cross questions arised. Okay, so इसमें जो नोट है आप देख लीजिए, तो आपको कॉमन प्रोसीडिंग समझ में आ गया. Separately proceedings initiated, simultaneously it should be initiated, right? Same evidence, different findings we can get, right? And as soon as possible, basically the inquiry authorities, they must complete the work. Okay, if slightly delay is there, any conflict finding would be there, right? तो ये कॉमन प्रोसीडिंग आपका समझ में आ गया. मगर नोट है, यदि अथॉरिटीज डिफरेंट होते हैं, सपोज मैं अभी जो एग्जांपल दिया कि 4 एम्प्लॉइज है, उनके बीच में फाइटिंग हुआ और कॉमन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, सेपरेटली 4 एम्प्लॉइज के लिए प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चला, सेम एविडेंस में डिफरेंट फाइंडिंग्स मिला, ठीक है? तो ये जो हुआ, सपोज जो 4 एम्प्लॉइज, उनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डिफरेंट है, उनका जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है वो डिफरेंट है. तो इसमें एक्चुअली अल्टीमेटली हु एक्चुअली direct the order related to the suppose punishment, who direct the order finally, it means जो यदि डिफरेंट एम्प्लॉइज के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिफरेंट होते हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो अल्टीमेट ऑर्डर देता है, वो अल्टीमेटली पनिशमेंट ऑर्डर देगा, हाईएस्ट अथॉरिटी जो है. यदि फॉर डिफरेंट एम्प्लॉइज के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अलग अलग है. ओके, वही इट इज क्लियरली गिवन, इफ द अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल ऑन ऑल सच गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर डिफरेंट, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the above. तो अल्टीमेटली यदि जो अक्यूजर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज अलग अलग है, इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर डिफरेंट वन, देन द हाईएस्ट अथॉरिटी अमंग देम अल्टीमेटली it means give the disciplinary action, right, related to the common proceeding with the consent of the other disciplinary authorities. जो कॉमन प्रोसीडिंग में जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो हाईएस्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो एक्चुअली फाइनल डिसीजन लेगा. ओके, क्या एक्शन दिया जाएगा, okay, what type of punishment should be given, what type of penalty should be imposed, finally the highest authority, okay, would take the decision after consent with other disciplinary authorities, right? You see the question number 2. If government employees working in the same office made complaints against each other, then the authority is competent to impose the penalty of dismissal on all such government servants are different. An order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by. अभी मैं बताया, यदि
two employees or more than two employees in the office complain against each other, and their competent authorities are different. Those competent authorities having power to impose the penalty of dismissal वो different है. तो ultimately after completion of the common proceeding, if the disciplinary authorities are different one, then who take the final disciplinary action, okay, against the accusers, against the employees, those employees actually fought among each other. तो इसमें मैं वही बताया था, जो हाईएस्ट है उनके बीच में जो कंपेटेंट अथॉरिटीज है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है, जिसका हाईएस्ट पोजीशन है, वो अथॉरिटी एक्चुअली अल्टीमेट डिसीजन लेगा आफ्टर कंसेंट विथ अदर्स. तो वही ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द हाईएस्ट ऑफ सच अथॉरिटीज, तो सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द हाईएस्ट ऑफ सच अथॉरिटीज विद द कंसेंट ऑफ द अदर्स. उनके बीच में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो अदर अथॉरिटीज का कंसेंट लेगा और फाइनल डिसीजन लेगा कि किसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, which of the below statements are correct one? करेक्ट स्टेटमेंट्स हम डिटेक्ट करेंगे. ये रूल 19 आ गया, आगे में हम रूल 19 डिस्कशन करेंगे. अकॉर्डिंग टू द रूल 19 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स, फर्स्ट वन 3 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट्स हम डिटेक्ट करेंगे. Where any penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. ओके, तो हम जानते हैं कि रूल 19 का जो सब रूल 1 है उसमें क्लियरली दिया गया है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर क्रिमिनल चार्ज है और अल्टीमेटली वो कन्विक्ट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट एक्चुअली पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन हिम. तो वहां पर कोई इंक्वायरी का जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ इंक्वायरी. द कंसर्न एम्प्लॉई इन्वॉल्व इन क्रिमिनल चार्ज and ultimately convicted by the court, then according to the gravity of the conduct of the concerned employee, the penalty would be imposed on him without any inquiry. जो रूल 14 में, जो रूल 16-14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, 14 में मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, रूल 16 जो है क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का, वो माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है. वहां पर ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा क्योंकि वो क्रिमिनल चार्ज में इन्वॉल्व है और वो कन्विक्ट भी है. तो ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट को देकर, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट एक्चुअली द पेनल्टी वुड बी इम्पोज्ड. ये तो करेक्ट है. ठीक है, ये करेक्ट है. यहाँ पर कोई देयर इज नो ओके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. सेकेंड वन, वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज सर्टिफाइड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग दैट इट इज नॉट रीजनेबल प्रैक्टिकेबल टू होल्ड एन इंक्वायरी. ऐसा कुछ केस है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोलता है कि यहां पर इंक्वायरी नहीं होगा और वो ऑथेंटिक रीजन दे देता है. क्लियर? वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज टेकन डिसीजन दैट द इंक्वायरी वुड नॉट बी कंडक्टेड and the disciplinary authority give the authentic reason. For what reason? Without any type of inquiry, the penalty would be imposed. तो ये भी करेक्ट है. अभी हम आगे में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. कभी कभी क्या है, सपोज ए कंसर्न एम्प्लॉई वो कोई फ्रॉड केस है, मिस अप्रोप्रिएशन केस में इन्वॉल्व है और वो अब्सकॉन्ड हो गया. तो जब अब्सकॉन्ड हो जाता है, देन इन दिस केस एक्चुअली इट इज नॉट डिटेक्टेड द वेयर अबाउट्स ऑफ द एम्प्लॉई. तो इस केस में एक्चुअली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विदाउट एनी इंक्वायरी अल्टीमेटली द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वुड इम्पोज द पेनल्टी. ठीक है. थर्ड चीज है, वेयर द प्रेसिडेंट इज सर्टिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर वो सेटिस्फाई होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एक्सपीडियंटली, इट मीन्स हस्टेनली और क्विकली कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा. अल्टीमेटली पेनल्टी इंपोज कर दिया जाएगा, मगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. ओके, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और कंट्री एक्सपीडियंटली और हस्टेनली और क्विकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड. तो यहाँ पर भी विदाउट बेसिकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेनल्टी इंपोज होगा. तो ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है. अभी रूल 19 को हम डिस्कशन करेंगे. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए रूल 19 स्पेशल प्रोसीज्योर। स्पेशल प्रोसीज्योर क्या है ना, विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, विदाउट इंक्वायरी, पेनाल्टी is imposed on the charged officer, penalty is imposed on the aggrieved officer। तो यहाँ पर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि रूल जो 14 है ये मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स होता है सीसीए रूल्स में, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स में ये मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स, मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स। और जो रूल 16 है ये माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स, राइट। मगर ये जो हम डिस्कशन अभी करेंगे स्पेशल केसेस में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा। देयर इज नो नीड ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, देयर इज नो नीड ऑफ इंक्वायरी, बट पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द aggrieved officer or charged officer। So first one you see it is given, अभी मैं बताया था फर्स्ट केस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। द गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल चार्ज एंड अल्टीमेटली कन्विक्टेड, राइट। सो इन दिस केस कोई इंक्वायरी नहीं होगा, देयर इज नो नीड ऑफ इंक्वायरी, देयर इज नो नीड ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द कंडक्ट, पेनल्टी इज इम्पोज्ड, राइट। ये फर्स्ट है। तो यहाँ पर जो है जो भी डिसीजन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लेगा, जो भी पेनल्टी इम्पोज करेगा वो एक्सेस नहीं होगा, इट इज नॉट बियॉन्ड द प्रोपोर्शन। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट, according to the basically proper assessment of the conduct, the disciplinary authority should impose the penalty। second one क्या है कि where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonable practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules। कि disciplinary authority ये सोच रहा है कि वो satisfy है कि यहाँ पर कोई disciplinary proceeding जरूरत नहीं है। Here actually disciplinary authority is satisfied that there is no need of any disciplinary inquiry, and he has mentioned the authentic reason, he has mentioned the authentic reason, for this authentic reason actually inquiry is not conducted and penalty is imposed। ये एक एग्जाम्पल अभी दिया था, जैसे सपोज पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन्वॉल्व इन फ्रॉड और एनी मिसअप्रोप्रिएशन केस and ultimately absconded, and then certificate actually issued from the it means police that still now whereabouts of the concerned government servant is not traced out, right। तो इस केस में क्या होगा ना, अल्टीमेटली जो ब्रीफ नोट सीट हो जाएगा, रीजन दे दिया जाएगा कि इसी रीजन के वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा क्योंकि वो एब्सकॉन्ड हो गया, ठीक है, जो फ्रॉड केस में इन्वॉल्व था। प्राइमा फासी एविडेंस है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व था कि मिस अप्रोप्रिएशन में इन्वॉल्व था, और वो एक मीन्स अभी उसको ट्रेस आउट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस केस में क्या होगा ना, ऑथेंटिक रीजन तो हो गया, तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, पेनल्टी इंपोज कर दिया जाएगा। और नॉर्मली जो पेनल्टी इंपोज होता है वो बेसिकली डिसमिसल और रिमूवल होता है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, ये एक स्पेशल केस है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर वो सेटिस्फाई होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन of the state or country, according to the security of the state or country, so expediently, hastily or quickly there is no need, there is no need of any disciplinary proceeding। तो वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि ऑनरेबल गवर्नर सेटिस्फाई होते हैं, और कि फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट क्विकली कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा, तो इस केस में पेनल्टी इंपोज कर दिया जाएगा विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ये 3 स्पेशल केसेस है, राइट। Next, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders there as deems fit। तो यहाँ पर circumstance को actually disciplinary authority must read the circumstances, must assess the circumstances, and then actually give orders, fit orders actually। तो step of orders actually would be compatible and equivalent one, so that it means penalty should not be excess one or it is not beyond the proportion। तो यहां पर क्या है, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्लॉज 1 क्या था, अभी हम बताए थे कि सपोज द गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल चार्ज एंड अल्टीमेटली कन्विक्टेड बाय द कोर्ट,
So according to the gravity of the conduct of the employee, or according to the basically intensity of conduct of the employee, ultimately disciplinary authority impose penalty without any disciplinary proceeding, only first case में. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट में बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन बिफोर एक्चुअली मेकिंग ऑर्डर बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है. ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है ऑर्डर के पहले. ठीक है, क्यों आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा, इससे फास्ट केस में ओनली, जहां पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिकली इन्वॉल्व इन criminal charge and convicted, and in that case actually according to the circumstance of the case, after reading the circumstance of the case, the disciplinary authority can impose penalty, but before imposing penalty opportunity should be given to the concerned employee, concerned charge officer to give representation. और ये भी हो सकता है कि यूनियन यूपीएससी, ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसल्टेशन भी होगा, provided that a commission shall be consulted where such consultation is necessary. यदि यूपीएससी का कंसल्टेशन नेसेसरी है तो यहाँ पर लिया जाएगा. एंड जब कमीशन का ऑर्डर आ जाएगा, मिल जाएगा, when the concerned officer, charged officer getting the order from the UPSC, then within 15 days he must give the representation, and it is clearly given. You see rule 15(3), rule 15 sub rule 3, it is clearly given. If consultation is there with UPSC and UPSC give order, then जब UPSC उसका ऑर्डर देगा तो उससे बेसिकली जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर है वो UPSC का ऑर्डर उसको मिल जाएगा. तो वो जिस दिन उसको ऑर्डर मिलेगा, UPSC का ऑर्डर मिलेगा, तो उसका 15 डेज के अंदर वो उसका रिप्रेजेंटेशन देगा. And the government servant has been given an opportunity of representing against the advice of the commission, okay, within the time limit specified. तो ये जो टाइम लिमिट है रूल 15(3), टाइम लिमिट क्या है, 15 डेज है. ओके, टाइम लिमिट, जहां पर यूपीएससी कंसल्टेशन एक्चुअली जरूरत है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसल्टेशन जरूरत है, तो वहां पर यूपीएससी का एडवाइस लिया जाएगा. जब एडवाइस मिल जाएगा तब जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा. और यदि यूपीएससी का कंसल्टेशन नहीं होता है, वही भी 15 डेज है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट सर्वेंट को 15 डेज. तो जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑर्डर मिलेगा, वो 15 डेज के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन देगा. देन द कंसर्न डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वुड इम्पोज पेनल्टी. तो ओनली फर्स्ट केस में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 सिचुएशन में बताया, ओनली फर्स्ट सिचुएशन में ये इसको फॉलो किया जाएगा. और कुछ नोट है. फर्स्ट ये है कि कन्विक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू बी प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे बी कन्विक्टेड इन ए क्रिमिनल कोर्ट टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज कन्विक्शन एंड द सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड देयरविथ as soon as it's possible for him to do so. तो जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो क्रिमिनल कोर्ट में कन्विक्टेड होता है, तो इमीडिएटली he must inform to the superior authority about it. When any government servant is convicted in a criminal charge by the court, then immediately he must inform to the superior authority about it. Okay, otherwise failure on the part of the government servant convict हो गया क्रिमिनल चार्ज में, मगर वो सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली ये दिया है, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट सो टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स विल बी रिगार्डेड एज सप्रेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट वन है कि वो कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन को वो सप्रेस किया, क्योंकि क्रिमिनल चार्ज में इन्वॉल्व रहा और कन्विक्ट हुआ, तो इमीडिएटली उसको सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, और इन्फॉर्म नहीं किया तो इट मीन्स कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन को वो सप्रेस किया. एंड इसमें क्या होगा ना, उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा इस ग्राउंड में, क्योंकि वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया. ओके, देन उसके ऊपर भी पेनल्टी भी लगेगा, क्योंकि वो क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है, ही इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल चार्ज एंड ऑल्सो अल्टीमेटली कन्विक्टेड बाय द कोर्ट. So on the gravity of the conduct, penalty would be imposed.
and penalty would be imposed. Then other than that also disciplinary proceeding would be initiated because some material information he suppressed, because he is convicted by the court on criminal charge but he has not informed to the superior authority. तो दोनों होगा. तो यदि वो मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस करता है, सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करता है उसका कन्विक्शन के बारे में, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा. और एज यूजुअल मैनर यदि वो कन्विक्ट होता है, ओके, कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट होता है क्रिमिनल चार्ज में, तो ऐसे भी उसके ऊपर तो पेनल्टी इंपोज होगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट. तो दोनों होगा यहाँ पर. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट वन, एक्शन ऑन कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज. अनदर वन, अनदर नोट, एक्शन on conviction on a criminal charge. In a case where a government servant has been convicted in a court of law of an offence which is such as to render further retention in public service of a government servant prima facie undesirable, the disciplinary authority may, if it comes to the conclusion that an order with a view to imposing a penalty on the government servant on the ground of conduct which had led to his conviction on a criminal charge should be issued. तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि कोई द गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑन क्रिमिनल चार्ज and disciplinary authority detected that in this matter actually through prima facie evidence, disciplinary authority has detected that the government servant cannot be kept in public service because वो उसका जो ग्रेविटी ऑफ कंडक्ट है वो बहुत डेंजरस है और वो अभी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा वो कन्विक्टेड है और क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर लगा है और कन्विक्टेड है और उसको पब्लिक सर्विस में कंटिन्यू करना ये क्या होगा ना, डिफ़िकल्ट है. ओके, कन्विक्टेड पर्सन को पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व करना वो भी एक क्राइम है. तो इस केस में क्या है, तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट, जो उसका कंडक्ट था, जो क्रिमिनल कंडक्ट था जिसके द्वारा एक्चुअली वो उसको कन्विक्ट किया गया, तो वहां पर क्या होगा ना, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी इंपोज करेगा. मगर यहां पर आता है, सपोज इशू सच एन ऑर्डर विदाउट वेटिंग फॉर द पीरियड ऑफ फाइलिंग एन अपील. कभी कभी क्या है, चार्ज ऑफिसर अपील फाइल करेगा तो इसमें कोई अपील का कोई मतलब नहीं है, तो एज यूजुअल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी इंपोज करेगा. ओके, इशू सच एन ऑर्डर विदाउट वेटिंग, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यहाँ पर वेटिंग नहीं करेगा कि वो जो अग्रीव्ड ऑफिसर है वो अभी अपील करेगा कि रिवीजन रिव्यू के लिए जाएगा, जो डिपार्टमेंटल बेसिकली उसके लिए ऑप्शन है, तो वो अपील को वेट नहीं करेगा. ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो कंडक्ट को, ग्रेविटी को मेजर करके उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगा. तो वहां पर वो नहीं देखेगा कि वो जो कंसर्न अग्रीव्ड ऑफिसर है वो अपील किया कि नहीं. और ये भी है, सपोज वो अपील कर दिया, मगर अभी क्या है, फर्स्ट कोर्ट, हियर यू सी इट इज गिवन, सेकेंड ऑप्शन ये है, वो इफ एन अपील हैज बीन फाइल्ड, जो अग्रीव्ड ऑफिसर है वो उसके अगेंस्ट में अपील कर दिया है कि मुझे जो कन्विक्ट किया गया है क्रिमिनल चार्ज में, मुझे जो कन्विक्ट किया गया है उसका अगेंस्ट में वो अपील किया है, तो उसमें डिसीजन नहीं आया है फर्स्ट कोर्ट से, जहां पर वो अपील किया है तो वहां से कोई डिसीजन नहीं आया है, तो उसके पहले वो एज यूजुअल मैनर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा, वो पेनल्टी इंपोज करेगा. बिफोर सच एन ऑर्डर इज पास द यूपीएससी शुड बी कंसल्टेड. जहां पर यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरत है वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसल्ट करेगा. तो यहां पर आप देखिए, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्रिमिनल चार्ज में इन्वॉल्व है और अल्टीमेटली कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वुड इम्पोज पेनल्टी अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट. तो वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वेट नहीं करेगा कि वो अभी सपोज अपील करेगा कि अपील किया है, उसको वो वेट नहीं करेगा. सपोज ये सोच रहा है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो बेसिकली वो अपील अभी करेगा तो अपील के बाद, ऐसा कुछ नहीं. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट को देखकर वो पेनल्टी इंपोज करेगा. ओके, सो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड नॉट वेट फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील. और यदि वो अपील किया है, ओके, कोर्ट में अपील किया है अगेंस्ट द कन्विक्शन,
देन उसमें कोर्ट से डिसीजन नहीं आया है तो भी कोई फर्क नहीं है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज यूजुअल क्या करेगा, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेगा। तो वो यहां पर याद रखना है, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड नॉट वेट फॉर द अपील, और इफ ही हैज मेड अपील इन द फर्स्ट कोर्ट एंड द डिसीजन इज नॉट कमिंग, देन इन दिस केस आल्सो एज यूजुअल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड इंपोज द पेनल्टी, राइट। और बिफोर यदि यूपीएससी का कंसल्टेशन होगा वो करेगा। नेक्स्ट वन, as soon as गवर्नमेंट सर्वेंट इज कन्विक्टेड ऑन ए क्रिमिनल चार्ज, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वो कोई भी क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्ट होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट इज कन्विक्टेड ऑन ए क्रिमिनल चार्ज, तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन में रहेगा। ये याद रखना है सर, अगर कन्विक्टेड ऑन ए क्रिमिनल चार्ज ही मे बी इन अप्रोप्रिएट केसेस बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ नॉट ऑलरेडी सस्पेंडेड। इसको याद रखना है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्टेड है, यदि उसका सस्पेंशन नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन केस वेयर द कन्विक्शन इज नॉट फॉर एन ऑफेंस, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड कॉल फॉर एंड एग्जामिन ए कॉपी ऑफ द जजमेंट विथ ए व्यू टू डिसाइड ऑन टेकिंग सच फर्दर डिपार्टमेंटल एक्शन as might be deemed appropriate। यदि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या है, बेसिकली जो मैटर है, जो ऑफेंस है, बेसिकली चार्ज ऑफिसर का जो ऑफेंस है, वो उसका जो ग्रेविटी इतना हाई डिग्री का नहीं है, ठीक है। वो जो ऑफेंस है एक छोटा सा एक ऑफेंस है, तो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा, जो जजमेंट का कॉपी है कोर्ट का, उसको वो पेरियूज करेगा। Disciplinary authority, suppose in this case actually there is no high degree of offense, it is a low degree of offense, and in this case actually disciplinary authority examine the judgment copy and then departmental action, then take the departmental action, okay। जो भी appropriate होगा वो उस तरीके का पेनल्टी लगाएगा। यदि बेसिकली वो जो ऑफेंस है इतना हाई डिग्री का नहीं है तो इसमें माइनर पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। मगर वो जजमेंट कॉपी को basically disciplinary authority go through the judgment copy of the court and then appropriate decision he would take, right। तो ये चीज को थोड़ा आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट अनदर नोट है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिस्पेंसिंग विथ इंक्वायरी इन केसेस ऑफ कन्विक्शन एंड अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या है, वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट व्हिच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज, penalty imposed upon the civil servant should not be grossly excessive or out of all proportion to the offense committed or one not warranted by the facts and circumstances of the case। यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई क्रिमिनल चार्ज में इन्वॉल्व है और उसको कन्विक्ट कर दिया गया, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, तो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो पेनल्टी इंपोज करेगा, मगर वो सर्कमस्टेंस को रीड करेगा। ऐसा पेनल्टी होगा जो एक्सेस नहीं होगा, द पेनल्टी शुड नॉट एक्सेसिव वन, शुड नॉट बियॉन्ड द प्रोपोर्शन। जो फैक्ट है, जो सर्कमस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड इंपोज पेनल्टी, ठीक है। आफ्टर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पासेस द रिक्विसाइट ऑर्डर्स, अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सपोज पेनल्टी इंपोज कर दिया, जो ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट, जो क्रिमिनल कंडक्ट है उसको असेस किया और सर्कमस्टेंस को देखकर रीड करके वो पेनल्टी इंपोज किया, तो यहाँ पर अग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है कि हम अपील कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर पेनल्टी लग गया, हम अपील, रिवीजन, रिव्यू कर सकते हैं, वो ऐसा ही वहां पर होगा, ठीक है। अग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन होगा, वो अपील, रिवीजन, रिव्यू करेगा। सपोज ये सभी में आज द केस में बी दैट, हाँ कब करेगा, यदि जो अग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सोच रहा है कि मेरे ऊपर जो पेनल्टी लगा वो एक्सेस है और वो बियॉन्ड ऑफ प्रोपोर्शन है, और इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एक्चुअली पेनल्टी इंपोज्ड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो इस केस में वो पेनल्टी करेगा, द पेनल्टी वाज टू सिवियर और एक्सेसिव एंड नॉट वारंटेड बाय द फैक्ट्स एंड, तो वही है मैं अभी बताया। यदि अग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट ये सोचता है कि जो पेनल्टी मेरे ऊपर लगा, ओके, इट इज बियॉन्ड ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द कंडक्ट, इट इज बियॉन्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द कन्विक्शन, तो इस केस में वो अपील, रिवीजन और रिव्यू करेगा। और यदि वो ये सब में फेल होता है, अपील, रिवीजन, रिव्यू में फेल होता है,
तो वो जुडिशियल रिव्यू करेगा। इफ ही फेल्स इन ऑल द डिपार्टमेंटल रेमेडीज अवेलेबल टू हिम स्टिल वांट टू परस्यू द मैटर, ही कैन सीक जुडिशियल रिव्यू। वो अपील करेगा, रिवीजन रिव्यू में जाएगा कि मेरे ऊपर जो पेनल्टी लगा वो बियॉन्ड ऑफ प्रपोर्शन है, ओके, वो इट इज एक्सेसिव वन, तो मगर वो फेल हुआ, ओके, वो जो अपील किया था रिवीजन रिव्यू वो सब फेल हो गया, तो जुडिशियल रिव्यू को जा सकता है, वो कोर्ट को जा सकता है, राइट। Where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonable practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules। तो यहां पर है, देखिए सेकंड में क्या है, यहां पर देख लीजिए सेकंड में क्या है, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा, विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेनल्टी वुड बी इम्पोज्ड। ये रूल आप देख लीजिए, मैं बताया था रूल 19II ना, रूल 19II में क्लियरली था कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्चुअली अल्टीमेटली हैज टेकन डिसीजन दैट विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग penalty would be imposed on the aggrieved officer by giving authentic reasons. Authentic reasons should be recorded and penalty would be imposed without any disciplinary proceeding। तो यहां पर क्या है, the decision of the competent authority cannot be questioned। तो यहां पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इस केस में बेसिकली जो 19 में अभी बताया, जो रूल 19 बेसिकली II जो है सेकेंड पार्ट है रूल 19 का, कि disciplinary authority has decided that without disciplinary proceeding, without inquiry, the penalty would be imposed on the aggrieved official through giving proper reasons, okay। तो इस केस में क्या होगा, अपील रिवीजन रिव्यू नहीं रहेगा, ये जो डिपार्टमेंटल ऑप्शन होता है वो नहीं रहेगा, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन अपील रिवीजन रिव्यू। बट यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कोर्ट को जाएगा, कोर्ट ये नहीं है, हाँ जो डिपार्टमेंटल रूल्स है उसमें अपील रिवीजन रिव्यू नहीं रहेगा, बट दिस फाइनलिटी नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट सो फॉर एज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्न, तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। हाँ ठीक है, यहां पर इस केस में सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एब्सकॉन्ड हो गया, तो अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड किया कि ये पेनल्टी इंपोज होगा विदाउट प्रोसीडिंग, और वो रीजन भी दे दिया, रीजन भी रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रीजन दे देगा, राइट, और पेनल्टी इंपोज कर देगा। और इसमें एक्चुअली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन को बेसिकली जो डिपार्टमेंटल एक्शन होता है अपील रिवीजन रिव्यू में, इसमें एक्चुअली वो नहीं जा सकता, एग्रीव्ड ऑफिसर अपील नहीं कर सकता, रिवीजन रिव्यू नहीं कर सकता, मगर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ओके। द एग्रीव्ड ऑफिसर मस्ट गो टू द कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो ये रूल को कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट उसको फिर वो सर्कमस्टांस को रीड करेगा और चाहेगा जो पेनल्टी दिया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने वो पेनल्टी से उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है, ओके। इफ द मैटर गोज टू द कोर्ट, कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग विद द रूल्स ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। अगेन द कोर्ट एक्चुअली read all the situations, read all the circumstances, and might be court actually exempt the aggrieved officer from the penalty, okay। तो and the court is competent, और कोर्ट भी ये बोल सकता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी करो, ओके। ऑल्सो द कोर्ट में गिव डिसीजन फॉर इंक्वायरी, ये भी हो सकता है। एंड द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू स्ट्राइक डाउन द ऑर्डर डिस्पेंसिंग विद द इंक्वायरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, इंक्वायरी नहीं होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोल दिया यहाँ पर इंक्वायरी नहीं होगा, रीजन रिकॉर्ड हो गया और पेनल्टी इंपोज हो जाएगा, और जब मैटर को कोर्ट को जा सकता है, हाँ डिपार्टमेंटल रेमेडीज नहीं है, अपील की रिवीजन रिव्यू नहीं है, मगर जुडिशियल रिव्यू है, एग्रीव्ड ऑफिसर कोर्ट को जा सकता है, और सर्कमस्टेंस को रीड करने के बाद कोर्ट ये डिसीजन लिया कि इंक्वायरी किया जाए, बिना इंक्वायरी से इस तरीके का पेनल्टी नहीं लगेगा, कि ये जो पेनल्टी लगा है उसको उससे अभी वो एग्जेम्प्ट होगा, okay। according to the order of the court the penalty can be lifted out, तो ये भी हो सकता है। and also the order imposing penalty should such a course of action be considered necessary by the court in the circumstances of the case। तो वहां पर कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, तब
कि ये जो ऑप्शन नहीं है, जो फाइनल डिसीजन ले लिया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ओके, वहां पर कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर द प्रेसिडेंट इज सर्टिफाइड दैट in the interest of the security of the state, another note है, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these rules. You see the rule 19 सब रूल ट्रिपल आई, आप देख लीजिए 19 ट्रिपल आई में कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि बिना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से पेनल्टी इंपोज होगा, क्योंकि अभी वो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एक्सपीडियंट क्विकली द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड, राइट, ये हुआ था। तो रीजन्स फॉर दिस सेटिस्फैक्शन, तो ये जो रीजन्स है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो रीजन्स दिए हैं कि फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, की फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हस्टेनली और क्विकली एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड, तो ये पेनल्टी ऑर्डर में ये रिकॉर्डेड नहीं होगा। द रीजन्स फॉर दिस सेटिस्फैक्शन नीड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, नॉर कैन इट बी मेड पब्लिक। ये जो रीजन है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऑनरेबल गवर्नर जो रीजन दिया है कि इसके वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा, ओके, मगर पेनल्टी लगेगा, तो इस केस में सपोज डिसमिस कर दिया गया कंसर्न एम्प्लॉय को, कि रिमूव कर दिया गया, कि उसका रैंक को कम कर दिया गया, कि पब्लिक को ये रीजन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, रीजन को रिकॉर्डेड नहीं किया जाएगा, राइट। तो देयर इज नो प्रोविजन, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल गवर्नर सेटिस्फाई है, तो उनका रीजन से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं हुआ और पेनल्टी इंपोज हुआ, तो इसमें कोई अपील रिव्यू रिवीजन नहीं रहेगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंटल अपील और अदर डिपार्टमेंटल रेमेडी अगेंस्ट द सेटिस्फैक्शन रीच्ड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। इस केस में कोई अपील, रिवीजन और रिव्यू नहीं रहेगा, ठीक है। मगर यहां पर दिया है if however the inquiry has been dispensed with by the president or the governor, जो इंक्वायरी है वो मना कर दिया गया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर बेसिकली दे डिनाई द इंक्वायरी फॉर सम सिक्योरिटी रीजन, मगर जो पेनल्टी ऑर्डर देगा, द ऑर्डर ऑफ द पेनल्टी हैज बीन पास्ड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट देयर टू, मगर यहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर पेनल्टी इंपोज नहीं किया, मगर यहां पर वो उनका सेटिस्फैक्शन से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर का सेटिस्फैक्शन से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुआ, मगर जो पेनल्टी ऑर्डर दिया वो बेसिकली सबऑर्डिनेट अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने दिया, ठीक है। तो इस केस में डिपार्टमेंट जो अपील डिवीजन रिव्यू है, जो डिपार्टमेंटल रेमेडीज है, वो अग्रीव्ड ऑफिसर जा सकता है, इसमें होगा, डायरेक्ट में नहीं होगा। यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल गवर्नर वो डायरेक्टली पेनल्टी इंपोज करते हैं, वहां पर कोई डिपार्टमेंटल रेमेडीज नहीं है, अपील रिव्यू की रिवीजन नहीं है। और यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर, देयर इज नो इंक्वायरी कंडक्टेड, देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, बट पेनल्टी एक्चुअली इंपोज्ड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी लाइक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो इस केस में यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्चुअली पेनल्टी लगाता है, मगर इंस्ट्रक्शन आता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो इस केस में अपील रिवीजन लाई करता है, अग्रीव्ड ऑफिसर कैन गो फॉर अपील रिवीजन और रिव्यू। तो यहां पर क्या है, अभी बेसिकली जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर है वो बोलते हैं कि एक्चुअली क्यों डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा, क्योंकि फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ओके, सो क्विकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा। तो इस केस में वो अपील रिवीजन में जाएगा, नॉर्मल वो ये भी रिक्वेस्ट करेगा कि उसके ऊपर इंक्वायरी किया जाए नॉर्मल सिचुएशन में, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, ओके, देयर इज नो थ्रेटनिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, एट दैट टाइम इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, दैट डिमांड मेड बाय द अग्रीव्ड ऑफिसर। तो वही दिया है, इन सच एन अपील रिवीजन द सिविल सर्वेंट कैन आस्क फॉर एन इंक्वायरी टू बी हेल्ड इनटू हिज अलेज्ड कंडक्ट इन नॉर्मल सिचुएशन। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, अग्रीव्ड ऑफिसर बोल रहा है कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो उसको इंक्वायरी किया जाए, ओके। When situation is not normal one, आप अग्रीव्ड ऑफिसर एक्चुअली अपील कर दिया कि रिवीजन कर दिया, मगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, द हियरिंग ऑफ द अपील और रिवीजन एप्लीकेशन शुड बी पोस्टपोन्ड फॉर ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम फॉर द सिचुएशन टू बिकम नॉर्मल।
क्योंकि मेन जो पर्पज है वही ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर ये बोलते हैं कि अभी एक्चुअली फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री क्विकली क्विकली द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड। ओके, क्विकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि यदि होता है तो वो थ्रेटनिंग होगा फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी of the country or the state, the disciplinary proceedings should not be initiated, and it is satisfied by the honorable president and the governor। मगर पेनल्टी इंपोज कर रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी इंपोज करेगा तो यहाँ पर तो अपील रिवीजन का ऑप्शन होता है। यहाँ तो डायरेक्टली ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर वो पेनल्टी इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ देम एक्चुअली द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एक्चुअली इंपोज पेनल्टी, और यहाँ पर तो अपील और रिवीजन लाई करता है। मगर यहाँ पर जो अपील रिवीजन लाई होगा, जो सिचुएशन नॉर्मल होगा वो इंक्वायरी होगा। इन सच एन अपील रिवीजन सिविल सर्वेंट, सपोज सिविल सर्वेंट अपील रिवीजन में ये बोल रहा है कि इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी में जो भी रिजल्ट आएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मगर बिना इंक्वायरी से अभी मुझे ये इस तरीके का पेनल्टी लग गया तो मुझे इंक्वायरी चाहिए। मगर इंक्वायरी कब होगा? नॉर्मल सिचुएशन में। और यदि वो अपील रिवीजन डालता है और अभी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए, तो वो पोस्टपोन होगा वो एप्लीकेशन। जब सिचुएशन नॉर्मल होगा फिर इंक्वायरी हो सकता है। ठीक है। ऑर्डिनरीली द satisfaction reached by the president or the governor would not be a matter for judicial review। जब जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर वो जब सेटिस्फाई होते हैं कि बिना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से एक्चुअली पेनल्टी इंपोज किया जाएगा और कोई प्रोसीडिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इट मीन्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा कि इंक्वायरी होगा, वो स्टेट के लिए थ्रेटनिंग होगा कि कंट्री के लिए थ्रेटनिंग होगा, तो वहां पर इस मैटर में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर सेटिस्फाई है कि डिसिप्लिन प्रोसीडिंग नहीं होगा, तो वहां पर कोई उनका जो सेटिस्फैक्शन के ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन व्हेन अपील और रिवीजन अगेंस्ट कन्विक्शन सक्सीड्स। कभी कभी क्या है, ड्यू टू अपील और रिवीजन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्विटेड, द ऑर्डर इम्पोजिंग ए पेनल्टी ऑन हिम ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन which no longer stands becomes liable to be set aside। ये भी जो है अपील रिवीजन में गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्विट कर दिया गया, तो इस केस में बेसिकली जो कन्विक्शन वो कन्विक्टेड था उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा था, तो पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया जाएगा क्योंकि अभी वो एक्विटेड हो गया। और यहाँ पर एक मजा बात है, ए कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑफ द हायर कोर्ट शुड देयरफॉर बी इमीडिएटली प्रोक्योर्ड एंड एग्जामिन्ड। इस मैटर में यदि कोई हायर कोर्ट ने जजमेंट दिया है और वो कॉपी को एग्जामाइन करना जरूरी है। यदि इस केस में अपील रिवीजन में गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्विट कर दिया गया, उसके ऊपर जो पेनल्टी था वो सेट असाइड कर दिया गया, तो इमीडिएटली क्या होगा, इसी रिलेटेड मैटर में, ओके, इन दिस मैटर इफ एनी हायर कोर्ट ऑलरेडी टेकन डिसीजन, देन दैट ऑर्डर शुड बी प्रॉपरली प्रोक्योर्ड एंड एग्जामाइंड विथ ए व्यू। तब हम डिसाइड किया जाएगा कि अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्विट कर दिया गया, क्या उसके जो एक्विटल के अगेंस्ट में हायर कोर्ट जा सकते हैं, तो वेदर द एक्विटल शुड बी चैलेंज्ड इन ए स्टिल हायर कोर्ट। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि उसको एक्विट कर दिया जाता है तो रिलेटेड टू दैट मैटर, इफ सपोज इन पास्ट एनी ऑर्डर इशूड बाय द हायर कोर्ट, इट मस्ट बी प्रोक्योर्ड एंड एग्जामाइंड थरोली। और उससे पता चलेगा क्या अभी जो एक्विटल हो गया, now the government servant is acquitted and against the acquittal actually can we go to the higher court, क्या ऑप्शन है, हम हायर कोर्ट जा सकते हैं एक्विटल अगेंस्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसी रिलेटेड जो कन्विक्शन मैटर में यदि कोर्ट कोई पास्ट में ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर को थोड़ा प्रोक्योर किया जाएगा और अच्छे से एग्जामाइन किया जाएगा। फिर एग्जामाइन करने के बाद डिसीजन होगा कि हम हायर कोर्ट को जाएंगे कि नहीं अगेंस्ट द एक्विटल। नेक्स्ट है वेदर despite the acquittal the facts and circumstances of the case are such as to call for a departmental inquiry against the government servant। ये भी हो सकता है। सेकंड केस क्या है, और एक ऑप्शन है कि वो तो एक्विटल हो गया मगर अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगा। फाइनली ये डिसाइड होता है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिकली ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट और ग्रेविटी ऑफ द कन्विक्शन
ये है कि अभी वो तो अक्विटल हो गया, मगर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, क्योंकि जो कंडक्ट था, जो ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट है था, वो थोड़ा क्या था, ज्यादा था, हाई डिग्री का था, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा। तो ये दो ऑप्शन होता है। अभी जो अक्विटल हो गया कंसर्न एम्प्लॉय, क्या हम हायर कोर्ट जा सकते हैं? क्या अभी तो अक्विटल हो गया, मगर उसका जो ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट को देखकर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके ऊपर इनिशिएट होना जरूरी है। तो ये है सेकंड ऑप्शन, वेदर डिस्पाइट द अक्विटल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच एज टू कॉल फॉर ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस ऑन व्हिच ही वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड। तो दो ऑप्शन है, आइदर हाई कोर्ट, हायर कोर्ट को जाना है, ठीक है, आइदर हायर कोर्ट को जाना है, और सेकेंड ऑप्शन यही है, नहीं तो डिपार्टमेंटल इट मीन्स प्रोसीडिंग उसके ऊपर होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट की सर्कमस्टेंसेस को देखकर अक्विटल तो हो गया, मगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो दो ऑप्शन होता है। यदि हम हायर कोर्ट को जाएंगे अगेंस्ट द अक्विटल, इफ इट इज डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू स्टिल हायर कोर्ट, यदि हम इसी मैटर को अगेंस्ट द अक्विटल, इफ वी गो टू द हायर कोर्ट, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी है, जब तक वो हायर कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ेगा, तब तक उसके ऊपर जो पेनल्टी है, पेनल्टी को सेट असाइड नहीं किया जाएगा, याद रखना है। क्योंकि उसको अक्विट कर दिया गया, हम इमीडिएटली क्या हायर कोर्ट में केस डाल दिए अगेंस्ट द अक्विटल, तो नाउ केस इज पेंडिंग इन हायर कोर्ट, सो इन पेंडिंग डेज द पेनल्टी शुड नॉट बी सेट असाइड। उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा था वो सेट असाइड नहीं होगा, क्योंकि वो अभी केस उसका अक्विटल अगेंस्ट में अभी हम हायर कोर्ट चले गए, और हायर कोर्ट में अभी पेंडिंग है। जब तक हायर कोर्ट में फाइनल डिसीजन नहीं आया, तब तक उसके ऊपर जो पेनल्टी था वही पेनल्टी रहेगा, ठीक है। ये हो गया, द पेनल्टी इम्पोज्ड शैल नॉट बी सेट असाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन है, इन द अदर हैंड, यदि हम डिसाइड करते हैं कि उसको तो अक्विटल कर दिया गया, मगर अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, on the other hand it is decided that a departmental inquiry may be held, तो एक फॉर्मल ऑर्डर होगा कि उसके ऊपर जो पेनल्टी था, वो पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया, हटा दिया गया, उसके ऊपर जो पेनल्टी था हटा दिया गया, और अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया गया। तो दो ऑप्शन है, हायर कोर्ट को जाएंगे, ओके, गो टू द हायर कोर्ट अगेंस्ट द अक्विटल, एंड इफ द केस इज पेंडिंग इन हायर कोर्ट, देन विद इन पेंडिंग डेज एक्चुअली द पेनल्टी शुड नॉट बी सेट असाइड, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा था वही रहेगा, क्योंकि अभी हायर कोर्ट चला गया उसका अक्विटल के अगेंस्ट में। सेकंड केस, यदि डिसीजन हुआ कि अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा, तो इस केस में उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा था उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और ऑर्डर कर दिया जाएगा कि उसके ऊपर अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन केसेस वेयर द पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कन्विक्शन was dismissal, removal और compulsory रिटायरमेंट, ऐसा उसके ऊपर पेनल्टी लगा है, उसको डिसमिस कर दिया गया है कि रिमूव कर दिया गया है कि उसका रैंक को कम कर, कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया है, तो इस तरीका का माने जो कन्विक्शन था, जो क्रिमिनल कोर्ट में वो कन्विक्टेड था, और ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट को देखकर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसको डिसमिस कर दिया था, कि रिमूव कर दिया था, कि उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया था। तो इस केस में क्या होगा, यदि अभी वो अपील रिवीजन से फिर ये आया कि नहीं, अभी उसके ऊपर फिर इंक्वायरी होगा, अगेन इंक्वायरी वुड बी कंडक्टेड, तो अपील रिवीजन में ये डिसीजन हुआ, अभी तो वो ऑलरेडी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज टेकन डिसीजन डिसमिस्ड, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट, मगर अभी अपील और रिवीजन में ये डिसाइड हुआ कि अभी अगेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो यदि अपील रिवीजन में ये आ गया, तो जिस डेट से उसको रिमूव, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया था, उसी डेट से उसको सस्पेंशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो जो पीरियड है उसको सस्पेंशन करके वो इट मींस पीरियड माना जाएगा, सस्पेंशन पीरियड माना जाएगा। तो वही दिया है, ये देखिए रूल, सीसीए रूल का रूल 10 सबसेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है। पहले जो अग्रीव्ड ऑफिसर उसको डिसमिस कर दिया गया था, कि रिमूव कर दिया गया था, कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया था, और अभी वो अपील रिवीजन में ये डिक्लेयर हुआ कि अगेन प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेन इनिशिएट होगा। तो इस केस में जिस डेट से उसको डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया था, ओके, उसी डेट से जो अब तक जो डिसीजन आया कि अगेन उसके ऊपर इंक्वायरी चलेगा,
तब तक वो जो पीरियड है वो ओनली सस्पेंशन पीरियड डिक्लेयर होगा। ठीक है, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। वो जो डिसमिसल पीरियड था कि रिमूवल पीरियड था कि कंपल्सरी रिटायरमेंट पीरियड को सस्पेंशन पीरियड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, रूल 10(4) बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रिवीजन अपील में ये होता है कि अगेन इंक्वायरी इनिशिएट होगा, ओके, एम्प्लॉइज को, कंसर्न एम्प्लॉय को जो रिमूव कर दिया गया है कि डिसमिस कर दिया गया है कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया है, तो उसको लिफ्टेड आउट, ओके, इन अपील और रिवीजन, और ये थ्रू अपील एंड रिवीजन इट इज डिक्लेयर दैट अगेन इंक्वायरी वुड बी कंडक्टेड, और वो जो रिमूवल पीरियड है कि डिसमिसल पीरियड है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट पीरियड है उसको सस्पेंशन पीरियड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये रूल 10 सबसेक्शन 4। ठीक है, और absconding ऑफिशियल्स के ऊपर है एक्शन अगेंस्ट absconding ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन फ्रॉड। सपोज कोई ऑफिशियल्स वो फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन, मॉनेटरी मिस अप्रोप्रिएशन में इन्वॉल्व है और वो abscond हो जाता है, तो क्या होगा? फर्स्ट वन, ए सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लोकल पुलिस अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना है, और सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा कि वेयर अबाउट द ऑफिशियल्स कंसर्न्ड आर नॉट नोन, और दिस सर्टिफिकेट शुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड इन द कंसर्न फाइल। एक यदि abscond हो जाता है, सपोज द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन फ्रॉड और मॉनेटरी misappropriation and then abscond, then in that case actually first one immediately the case should be lodged in the police station, and one certificate collect from the police station that whereabouts of the official are not known, and ये जो सर्टिफिकेट है it must be recorded in the file, और एक ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस एंड चार्जेस शुड बी प्रिपेयर्ड एंड केप्ट ऑन द फाइल। जो भी एलिगेशंस उसके ऊपर लगा है, जो भी चार्जेस लगा है, उसके ऊपर की ब्रीफ रिपोर्ट उसका फाइल में रहेगा। थर्ड चीज में जो रूल 19 ये था कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैज टेकन डिसीजन दैट विदाउट एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग विदाउट इंक्वायरी पेनल्टी वुड बी इम्पोज्ड। अभी मैं बताया था कभी कभी क्या है ना, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये डिसाइड करता है कि कोई इंक्वायरी का जरूरत नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का जरूरत नहीं है, और वो रीजन भी रिकॉर्ड करेगा, ओके, ऑथेंटिक रीजन दे देगा और पेनल्टी इम्पोज कर देगा, और वहां पर वही यही सिचुएशन में जो abscond ऑफिशियल के ऊपर यही एक्शन लिया जाएगा। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन देन रिकोर्स टू रूल 19II ऑफ CCSCC रूल्स 1965 wherein the inquiry has to be dispensed with। यहाँ पर इंक्वायरी नहीं होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, पेनल्टी इम्पोज कर दिया जाएगा। रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग इंक्वायरी शुड देन बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। रीजंस क्यों इंक्वायरी नहीं होगा उसके ऊपर एक रीजन, ओके, रिकॉर्डेड होगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड इशू ऑर्डर्स इंपोजिंग सच पेनल्टी एज डीम्स फिट। जो एक्चुअली फिट केस के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी इंपोज करेगा। द एलिगेशंस एंड चार्जेस हैव टू बी ब्रीफली डिस्कस्ड इन द पनिशमेंट ऑर्डर। जो पनिशमेंट ऑर्डर होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पनिशमेंट ऑर्डर इशू होगा, जो पेनल्टी ऑर्डर इशू होगा, उसमें क्लियरली मेंशन होगा ब्रीफली किस तरीके का एलिगेशन चार्जेस लगा था, राइट। तो नॉर्मली इस केस में बेसिकली रिमूवल और डिसमिसल होता है। Normally in these type of cases actually the government servant should be removed from the job or dismissal from the job। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। चलो नेक्स्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ साइड रिमार्क अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट इन जुडिशियल ट्रायल। in judicial trial it sometimes happens that some censure is passed on a public servant in a side remark from the bench which he has no opportunity of answering or which the presiding officer may not have thought of sufficient importance। कभी कभी क्या है ना, सपोज जुडिशियल ट्रायल चल रहा है और पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में एक सेंस्योर लगता है। सेंस्योर मीन्स वो एक वार्निंग टाइप है, मगर वो रिकॉर्डेड होगा सर्विस बुक में। ये जो सेंस्योर आप फर्स्ट में माइनर पेनल्टी देखिए, फर्स्ट सेंस्योर है। तो यहाँ पर क्या है, जुडिशियल ट्रायल चल रहा था और उसमें पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक साइड रिमार्क आ गया, मगर वहां पर पब्लिक सर्वेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया आंसर देने के लिए। In judicial trial, it means one side remark actually imposed on a government servant, and the government servant is not getting opportunity to answer it। तो इस केस में क्या है, it is we do not think that it is a deliberate judgment। Such a remark should not be taken as a, हम ये नहीं सोचेंगे कि ये एक इंटेंशनल जजमेंट है, नहीं है, हम ये नहीं सोचेंगे, मगर ये सोचेंगे यदि हम जुडिशियल ट्रायल में, याद रखिए, यदि हम जुडिशियल ट्रायल में हम कन्विक्टेड नहीं है तब हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये जो साइड रिमार्क आया, जुडिशियल ट्रायल चल रहा था,
पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो एक साइड रिमार्क आया और वो आंसर नहीं दे पाया, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इंटेंशनल जजमेंट था। इट इज नॉट, क्योंकि कोर्ट दिया है, कोर्ट का जजमेंट सभी समय इम्पार्शियल होता है। तो मगर हम जुडिशियल ट्रायल में हम कन्विक्टेड नहीं है, जुडिशियल ट्रायल में हम कन्विक्टेड नहीं है, मीन्स हम उसके एग्नेस्ट में जो रिमार्क साइड रिमार्क आया उसके एग्नेस्ट में हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वही एन एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी इम्प्यूटेशन दैट ही मे हैव देयर इन इनकर्ड। तो यहां पर याद रखना है, आप जुडिशियल ट्रायल में कोई ऐसे पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक रिमार्क आया और वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला आंसर देने के लिए, हम ये नहीं सोचेंगे कि जो रिमार्क आया वो इंटेंशनल है। मगर ये है, हम क्लियर है कि हम ये देखें कि जो इन जुडिशियल ट्रायल एक्चुअली द कंसर्न एम्प्लॉय इज नॉट कन्विक्टेड। इन जुडिशियल ट्रायल इफ द कंसर्न एम्प्लॉय इज नॉट कन्विक्टेड, then he has the opportunity to defend himself and give representation against the imputation, what type of imputation imposed on him। तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, क्योंकि एक रिमार्क आया है साइड रिमार्क, वो कन्विक्टेड नहीं है, तब वो क्या है, उसको डिफेंड करने के लिए वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी चलो क्वेश्चन को चलेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, in case of absconding officials involved in fraud, the disciplinary authority can then take recourse to rule dash of CCA rules 1965, wherein inquiry has to be dispensed with। अभी मैं बताया था absconding officials केस में अल्टीमेटली क्या होगा, विदाउट इंक्वायरी, विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, पेनाल्टी imposed by the disciplinary authority with रिकॉर्डिंग रीजन रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दिया जाएगा अब्सकॉन्ड ऑफिशियल के ऊपर, और वहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा। और बेसिकली जो यहां पर पेनल्टी होता है डिसमिसल और रिमूवल होता है। तो ये है रूल, आप देखिए रूल 19II, ये एक स्पेशल केस है जिसमें क्या है कि विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग disciplinary authority impose penalty with recording reasons ना। अभी हम डिस्कस किया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रीजन रिकॉर्ड कर देगा और पेनल्टी इंपोज कर देगा। एक स्पेशल है रूल 19II, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आंसर इज बी डी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर देखिए करेक्ट स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर दिया। In judicial trials, it sometimes happens that some censure is passed on a public servant in side remark, अभी मैं डिस्कस किया, from the bench, and which he has no opportunity of answering। In judicial trial, the one side remark, basically one censure is imposed on a public servant, and the public in that side remark, actually the public servant has not got opportunity to give the answer। एक सेंसियर रिमार्क लगा दिया गया जुडिशियल ट्रायल में पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, और उसके पास टाइम नहीं था आंसर देने के लिए। तो ये केस में क्या हुआ, जो 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, सच रिमार्क शुड नॉट बी टेकन एज ए डेलिबरेट जजमेंट। ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो रिमार्क आया हम ये सोचेंगे कि वो इंटेंशनल है। कोर्ट का कभी भी रिमार्क वो इंटेंशनल नहीं होता है। द कोर्ट रिमार्क इज नॉट इंटेंशनल वन, ऑलवेज कोर्ट रिमार्क इज इम्पार्शियल वन। तो हम इसको जस्ट वी डू नॉट थिंक दैट इट इज ए डेलिबरेट जजमेंट। तो भैया सच रिमार्क शुड नॉट बी टेकन एज ए डेलिबरेट जजमेंट, स्टेटमेंट ठीक है। An employee should be given the opportunity of defending himself against the censure, ये भी ठीक है, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक रिमार्क आया है, वो जुडिशियल ट्रायल में तो कन्विक्ट नहीं है ना, ही इज नॉट कन्विक्टेड इन द जुडिशियल ट्रायल, ओनली वन साइड रिमार्क गिवन बाय द कोर्ट। ओके, यदि वो कन्विक्ट होता तब उसको डिफेंड करने के लिए, वो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होता। मगर here only remark given by the court and he is not convicted in the court, so in that case actually to defend himself he has the opportunity to give representation against the imputation। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सच रिमार्क शुड बी टेकन एज ए डेलिबरेट जजमेंट, नो, हम ये नहीं सोचेंगे कि जो
कोर्ट ने जो रिमार्क दिया वो जो डेलिबरेट है, इंटेंशनल है, नो। क्या एन एम्प्लॉय शुड नॉट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द सेंचुरी, ये भी गलत है। क्यों उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या वो कन्विक्टेड है? यदि वो कन्विक्टेड होता तब उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता उसको डिफेंड करने के लिए, मगर वो कन्विक्टेड नहीं है। कोर्ट ने एक रिमार्क दिया है और हम ये सोचे कि जो रिमार्क दिया है वो डेलिबरेट नहीं है कोर्ट का, तो हम उसको डिफेंड करने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, again two statements given, incorrect statement we can detect. Due to appeal or revision, if government servant is acquitted and against the acquittal matter goes to the higher court, then अच्छा यहां पर क्या है, अपील रिवीजन में गवर्नमेंट सर्वेंट को अक्विट कर दिया गया, मगर अभी अगेंस्ट द अक्यूटल समवन गो टू द हायर कोर्ट। तो जब हायर कोर्ट को हम अक्विटल अगेंस्ट में हायर कोर्ट को चले गए, तब उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा हुआ था वो सेट असाइड नहीं होगा, वो पेनल्टी एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि अभी फिर केस जो जिस केस में उसको अक्विट कर दिया गया वो मैटर अगेंस्ट द अक्यूटल फिर हायर कोर्ट को चला गया, तो स्टिल इट इज पेंडिंग इन द हायर कोर्ट। द एज यूजुअल मैनर द पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, इट शुड नॉट बी सेट असाइड। तो यही है, अभी अगेंस्ट द अक्विटल उसको अक्विट कर दिया गया, अगेंस्ट द अक्विटल मैटर हायर कोर्ट को चला गया, द पेनल्टी इम्पोज शैल नॉट बी सेट असाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ये करेक्ट है। क्योंकि अभी हायर कोर्ट को वंस चला गया मींस अगेंस्ट द अक्विटल, और उसके ऊपर जो पेनल्टी था उसको पेनल्टी को हटाया नहीं जाएगा, पेनल्टी शुड नॉट बी सेट असाइड, राइट। सेकंड क्या है, द पेनल्टी इम्पोज्ड शैल बी सेट असाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ये गलत है। जब तक अभी अगेंस्ट द अक्विटल, जब तक अभी हायर कोर्ट में केस है, केस पेंडिंग है, तब तक उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा हुआ था वो रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था। तो ऑप्शन 2, ओनली 2 ये है, क्योंकि इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आजकल इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। अगेन अनदर वन, ड्यू टू appeal or revision, if the government servant is acquitted, a copy of the judgment of the higher court should therefore be immediately procured and examined with a view to decide। देखिए, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट को अक्विट कर दिया गया अपील रिवीजन में, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा ना, इसी रिलेटेड मैटर में सपोज कोर्ट कुछ जजमेंट दिया था, पास्ट जजमेंट, वो ऑर्डर को प्रोक्योर करेगा, कलेक्ट करेगा और उसको एग्जामिन करेगा। क्या वो ये जो अगेंस्ट द अक्यूटल, क्या ये केस हायर कोर्ट को जा सकता है? कि ये जो अक्विटल तो हो गया, कि अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगा, वो अक्विटल हो गया मगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी ऑफ द कंडक्ट है, कि जो ग्रेविटी ऑफ द कन्विक्शन है उसको देखकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा। तो ऑप्शन 2 में बताया था। तो यहाँ पर यदि थ्रू अपील एंड रिविजन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्विटेड, then immediately any past judgment actually given by the court related to that matter, the judgment copy should be immediately procured and examined with a view to decide whether the acquittal should be challenged in a still higher court, ये ठीक है, or whether the despite in acquittal the facts and circumstances of the case are such as to call for a departmental inquiry against the government servant on the basis of the allegations on which he was previously convicted, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो भी क्या होगा, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट को अक्विट कर दिया जाता है और वो अपील रिवीजन को जाता है और उसको अक्विट कर दिया जाता है, तब हम ऐसा कुछ कोर्ट का कुछ पास्ट ऑर्डर को देखेंगे इसी तरीका का रिलेटेड मैटर में, कि ऐसा कुछ मैटर को हम कलेक्ट करेंगे और एग्जामिन करेंगे, क्या इस अगेंस्ट द अक्यूटल कैन वी गो टू द हायर कोर्ट, कि वो तो अक्यूटल हो गया मगर अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके ऊपर इनिशिएट होगा कि नहीं। तो ये 2 ऑप्शन बचा है, ये और दोनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 इनकरेक्ट देखेंगे। where the president is satisfied that the interest of the security of the state it is not expedient to hold any inquiry, ये करेक्ट है। आप देखिए 19 सबसेक्शन 3 देखिए, 19 ट्रिपल आई रूल, इसमें क्लियरली मेंशन है कि इफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट for interest of the security of the state
क्विकली देयर इज नो नीड ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी नहीं होगा फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मगर पेनल्टी इम्पोज होगा। तो ये करेक्ट है। The reasons for this satisfaction be recorded in the order of dismissal, removal, or reduction in rank, nor can it be made public. Okay, the reasons for this satisfaction be recorded in the order of dismissal, removal, or reduction in rank. It is nor नहीं, सपोज इसको और कर दो, और कैन इट बी मेड पब्लिक, और कर दो कैन इट बी मेड पब्लिक, ये गलत होगा, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट देयर इज नो नीड ऑफ इंक्वायरी, मगर वो रीजन रिकॉर्ड नहीं होगा। जो रीजन एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो रीजन लिया है कि इस रीजन के वजह से इंक्वायरी नहीं होगा, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर तो जो अग्रीव्ड सर्वेंट है उसके ऊपर तो पेनल्टी लगेगा, चाहे उसको डिसमिस कर दिया गया कि रिमूवल की उसका रैंक को कम कर दिया गया, मगर ऑर्डर में ये कोई मेंशन नहीं होगा, कोई रीजन मेंशन नहीं होगा, और ऐसा भी इसको भी पब्लिक को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि ये रिकॉर्ड किया जाएगा, द रीजंस फॉर द सेटिस्फैक्शन बी रिकॉर्डेड, नो, ये गलत है। देयर इज प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंटल अपील और अदर डिपार्टमेंटल रेमेडी अगेंस्ट द सेटिस्फैक्शन इज बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, नो। ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर वो सेटिस्फाई होते हैं कि यहाँ पर इंक्वायरी नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट में कोई डिपार्टमेंटल रेमेडीज जो है, अपील है, रिविजन है, रिव्यू है, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। If, however, the inquiry has been dispensed with by the president or the governor and the order of penalty has been passed by the disciplinary authority, ये मजा बात है। एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर वो मना कर दिए कि इंक्वायरी नहीं होगा, मगर पेनल्टी ऑर्डर एक्चुअली पास कौन किया? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किया, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने किया। तो इस केस में डिपार्टमेंटल अपील और रिवीजन विल लाई, ये ठीक है। इस केस में रिवीजन और अपील होगा, रहेगा, क्योंकि यहाँ डिसीजन तो ले लिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट गवर्नर कि वो सेटिस्फाई हो गए कि इंक्वायरी नहीं होगा, मगर आप पेनल्टी कौन इम्पोज किया, पेनल्टी कौन पास किया? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, और जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पास करता है तब जो डिपार्टमेंटल रिमेडीज होता है, अपील रिवीजन, वो रहता है। The civil servant can be asked for an inquiry to be held into his alleged conduct immediately. तो ये गलत है, इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर बहुत सेटिस्फाई हो गए कि इंक्वायरी नहीं होगा फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इंक्वायरी नहीं होगा। तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट के पास तो रिवीजन अपील है, मगर वो बोलेगा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, बिना इंक्वायरी से मेरे ऊपर पेनल्टी लग गया, अभी उसको इंक्वायरी चाहिए इमीडिएटली। इमीडिएटली नहीं होगा, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तब इंक्वायरी होगा, तो ये गलत है। व्हेन सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल वन, द हियरिंग ऑफ द अपील और रिवीजन एप्लीकेशन शुड बी पोस्टपोन्ड फॉर ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम फॉर द सिचुएशन टू बिकम नॉर्मल, ये भी करेक्ट है। जब हम अपील रिवीजन एप्लीकेशन दे दिया, मगर अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, नाउ सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल वन, and the aggrieved government servant has appealed or it means applied for revision. So in that case, actually the application should be postponed for the length of time till the situation is normal one. तो दोनों 1, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली 2 यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है ना, ओनली 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, right? Where the president is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold any inquiries mentioned under which rule? तो ये तो बहुत इजी था, आप देखिए रूल 19 तो बोलता है कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं होगा, मगर पेनल्टी इंपोज होगा। तो 19 थर्ड जो है उसमें 3 सिचुएशंस है रूल 19 में, तीनों सिचुएशंस में ये है कि इंक्वायरी नहीं होगा, पेनल्टी इंपोज होगा। और थर्ड जो है रूल 19 सबसेक्शन जो ट्रिपल आई है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बहुत सेटिस्फाई है कि स्टेट का सिक्योरिटी को देखकर अभी इंक्वायरी नहीं होगा, पेनल्टी इंपोज होगा। तो ये रूल 19
ट्रिपल आई है, रूल 19 सबसेक्शन ट्रिपल आई. Answers, okay, C is the correct answer. Question number 11, where penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, provided that the commission shall be consulted where such consultation is necessary and the government servant has been given an opportunity of representing against the advice of the commission within the time limit specified under which rule of CCSCC rules 1965 before any orders are made. तो यहाँ पर क्या है कि the government servant involved in it means any offense, criminal offense, and ultimately convicted by the court. According to the gravity of the conduct, disciplinary authority has power to impose the penalty. और पेनाल्टी से पहले यदि द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी detected that consultation of Union Public Service Commission is necessary, then sent to the Union Public Service Commission. ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइस आ गया और इस मैटर में अपॉर्चुनिटी है, जो अग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो कन्विक्टेड है क्रिमिनल केस में, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए. मगर यहाँ पर यदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट कर दिया गया और कमीशन ने एडवाइस दे दिया और जिस डेट में एडवाइस मिल जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसका 15 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को. तो ये जो दिया है बेसिकली रूल 15 सबसेक्शन 4 में दिया है. रूल 15 सबसेक्शन 3 में दिया है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, रूल 15 सबसेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन है, यदि बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर if there is need of consultation with UPSC, then it means it is sent to the UPSC and suppose UPSC advice received, UPSC कमीशन से एडवाइस आ गया, तो जब गवर्नमेंट जो अग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको मिल जाएगा तो वो 15 डेज के अंदर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन देगा उसको डिफेंड करने के लिए. तो ये बेसिकली दिया है रूल 15 सबसेक्शन 3 में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Right. Question number 12. Failure on the part of any government servant is in regarding to his criminal conviction, so to inform his official superiors will be regarded as. कभी क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट कन्विक्टेड है, ये रूल है, if the government servant is convicted by the court then immediately he must inform to his superior. उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे क्रिमिनल कोर्ट में कन्विक्ट कर दिया गया इस क्रिमिनल चार्ज में. ओके, इस क्रिमिनल चार्ज मेरे ऊपर लगा था, अभी मैं कन्विक्टेड हो गया. तो वो सुपीरियर ऑफिसर्स को आपको इन्फॉर्म कर देना है. यदि आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फेल्ड टू इन्फॉर्म टू हिज सुपीरियर अथॉरिटी इन रिगार्डिंग टू हिज कन्विक्शन, तो वहां पर क्या होगा, करेक्ट दिया है सप्रेशन ऑफ मैटेरियल इंफॉर्मेशन. करेक्ट है, कुछ मैटेरियल इंफॉर्मेशन को वो सप्रेस किया. सेकेंड है, ये जो यदि मैटेरियल इंफॉर्मेशन को रेंडर हिम लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन दिस ग्राउंड अलोन, करेक्ट पूछा है. और थर्ड दिया है रेंडर हिम लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन दिस ग्राउंड अलोन अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी कर्ड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफेंस ऑन व्हिच कन्विक्शन वाज बेस्ड. ये दोनों करेक्ट है. ये नहीं होगा, ओनली नहीं होगा. इसमें क्या है, एक तो आप कन्विक्टेड हुआ मीन्स आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा. Once you are convicted in the court means penalty would be imposed. और एक मैटर में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होगा, आप मटेरियल सप्रेशन को क्या किया, कुछ मटेरियल्स को सप्रेस किया. यू आर कन्विक्टेड बट यू हैव नॉट इन्फॉर्म टू योर सुपीरियर अथॉरिटी. फॉर दैट रीजन एक्चुअली जस्ट यू हाइड सम इन मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड ऑन दिस ग्राउंड डिसिप्लिनरी एक्शन वुड बी इनिशिएटेड. तो दोनों होगा. एक साइड में आप मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, और एज यूजुअल मैनर सेकेंड साइड में क्या है, आप तो कन्विक्टेड हो तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगा. तो दोनों होगा. तो ये दोनों करेक्ट है. 1 और 3 करेक्ट पूछा है, ये करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 करेक्ट है. ये ओनली नहीं होगा कि ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन को वो सप्रेस किया इसके लिए वो ओनली डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. ये नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन तो होगा क्योंकि मटेरियल इंफॉर्मेशन को आप सप्रेस किया. अदर साइड में आप जो कन्विक्टेड हुआ ऑन क्रिमिनल चार्ज, एक्चुअली यू आर कन्विक्टेड,
then definitely without inquiry penalty would be imposed. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है 1 और 3 है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये अभी क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, टिपिकल क्वेश्चन, आपका पूरा थॉरोली नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंडर रूल डैश ऑफ द सीसीए रूल्स 1965 द गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस सेट असाइड फॉर फर्दर इंक्वायरी। हाँ, ये है कि क्लियरली दिया है, अभी इसके ऊपर था गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, मगर उसको सेट असाइड कर दिया गया, फर्दर इंक्वायरी दे दिया गया। फ्रॉम सर्विस इज सेट असाइड, देखो फ्रॉम सर्विस इज सेट असाइड। गवर्नमेंट सर्वेंट ने जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस की, आइदर डिसमिस और रिमूव और कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, और वो अपील रिवीजन कर दिया, वो अपील कर दिया कि रिवीजन में चला गया, और इसमें डिसाइड हुआ कि फर्दर इंक्वायरी होगा। जब ये डिसाइड हुआ कि फर्दर इंक्वायरी होगा, तो आप देख लीजिए रूल 10 सब रूल 4, रूल 10 तो सस्पेंशन के ऊपर है ना, रूल 10 सस्पेंशन के ऊपर है, उसका सबसेक्शन 4 देखिए क्लियरली मेंशन है, यदि अपील रिवीजन में ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि फर्दर इंक्वायरी होगा, तो जिस डेट से डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ था अप टू दिस जजमेंट, वो पीरियड को सस्पेंशन पीरियड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो डिसमिसल पीरियड था, रिमूवल पीरियड था, ये जो कंपल्सरी रिटायरमेंट पीरियड था, जिस डेट में आपको ऑर्डर मिला था कि आपको डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, उससे जजमेंट तक वो जो पीरियड था, वो पीरियड को सस्पेंशन पीरियड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये ऑन रूल 10 सबसेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिसिप्लिन अथॉरिटी में, if it comes to the conclusion that an order with a view to imposing a penalty on the government servant on the ground of conduct which had led to his conviction on a criminal charge should be issued, incorrect पूछा है, issue such an order without waiting for the period of filing an appeal, ये तो करेक्ट है, हम कोई अपील को वेट नहीं करेंगे। ये डिसाइड हो गया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देखा कि क्रिमिनल, the government servant involved in criminal offense, convicted by the court, then after reading the circumstances and after reading the facts, the disciplinary authority is ready to impose the penalty। वो ये नहीं देखेगा कि aggrieved person वो फिर कोर्ट में अपील किया, कि वो ऑलरेडी अपील कर चुका है मगर ट्रायल कोर्ट से अभी डिसीजन नहीं आया है, वो इसको नहीं देखेगा, वो एज यूजुअल वो पेनल्टी इंपोज करेगा। इशू सच एन ऑर्डर विदाउट वेटिंग, ये करेक्ट है फर्स्ट। इशू सच एन ऑर्डर बाय वेटिंग फॉर द फाइलिंग एन अपील, नहीं ये गलत है। इफ एन अपील हैज बीन फाइल्ड विदाउट वेटिंग फॉर द डिसीजन इन द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये करेक्ट है। इफ एन अपील हैज बीन फाइल्ड बाय वेटिंग फॉर द डिसीजन इन द फर्स्ट कोर्ट फॉर अपील, ये गलत है। तो वेट नहीं करेगा, वो एज यूजुअल पेनल्टी इंपोज करेगा। द गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल ऑफेंस एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, then disciplinary authority after reading the circumstances and facts, gravity of the conduct, disciplinary authority impose the penalty without it means without waiting for the period of appeal, or once it is already the aggrieved person has appealed in the court and judgment is not coming, but disciplinary authority is not wait okay for the decision of the trial court, तो वो एज यूजुअल उसका डिसीजन लेगा, पेनल्टी इंपोज करेगा। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो क्रॉस लगा दिया 2 और 4, ऑप्शन बी इनकरेक्ट को अंडरलाइन करो, उसको चेक कर दो। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चंस था, थोड़ा टिपिकल है मगर अच्छे से डिस्कस किया। तो प्लीज एक्चुअली विथ पेशेंस you go through the video, you can get very important questions, that type of questions now coming, and also you know the format of the question. So just you wait, and subsequent time I will bring some nice videos related to the classification control appeal rules 1965। आज इतना ही है, थैंक यू।